Good morning, dear students. This is our sixth lecture of matrices. So today I am going to start new topic, that is Cayley-Hamilton theorem. But before starting Cayley-Hamilton theorem, so let me explain characteristic equation of the matrix. So see, let A be the square matrix of order n, then we can form the matrix A minus lambda I. Which matrix we form? A minus lambda I. Okay, here lambda is scalar and I is the unit matrix of order n. Okay, then the determinant of this matrix equated to 0 is called as characteristic equation. Okay, so how do we define characteristic equation? So characteristic equation is the determinant of A minus lambda I equated to 0. Okay, now let us see characteristic equation of 2 by 2 matrix. So suppose we have matrix A, B, C, D. This is 2 by 2 matrix. Okay, and we know its characteristic equation is this one, right? So this is our characteristic equation, that is determinant of A minus lambda I equals to 0. Now on expansion, here we get, so A minus lambda I कैसे डिफाइन होगा? देखिए, suppose this is our A, so A minus lambda I, so A is 2 by 2 matrix, A, B, C, D, right? Minus lambda is scalar and I is unit matrix 1, 0, 0, 1. Okay, so here we get, so multiply this matrix by lambda and subtract from this first matrix, so we get A minus lambda, then B, then C, and here D minus lambda. Okay, this is the matrix A minus lambda I. But characteristic equation हम कैसे define कर रहे हैं? Determinant of A minus lambda I equated to 0. Okay, so that means determinant of, अगर हमने इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को 0 के साथ इक्वेट किया, then we get its characteristic equation, that is determinant of A minus lambda I, B, then C, and D minus lambda equals to 0, right? But on expansion of this determinant, we get lambda square minus S1 lambda plus determinant of A equals to 0. So यहाँ पर हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. So 2 by 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर S1, so here S1 is, where S1 is sum of diagonal elements. S1 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर? Sum of diagonal elements. Diagonal elements. ठीक है, तो देखिए इस मैट्रिक्स में अपने डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? A और D. ओके, S1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? आएगी इस मैट्रिक्स के लिए A प्लस D. ओके, एंड वी नो हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A. डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा? AD माइनस BC. ओके, तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0. ओके, ना 3 by 3 के लिए हम डिफाइन करेंगे. ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स. तो फिर से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डेफिनेशन मालूम है. क्या होती है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डेफिनेशन? डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा I इक्वल्स टू 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल I define its characteristic equation. So before that I take one matrix. So let A is equals to A11, A12, A13, then A21, A22, A23, A31, A32 and A33. Suppose this is our 3 by 3 मैट्रिक्स. ओके, तो हमें मालूम है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं?
So its characteristic equation is determinant of a minus lambda I equals to 0. ओके, और अगर हमने इस डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई को एक्सपांड किया तो हमें मिलेगा, सो ऑन एक्सपांशन वी गेट, so see for 3 by 3 matrix characteristic equation start with lambda cube. ओके, और 2 by 2 के लिए अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर से स्टार्ट होता है. ओके, सो फॉर 3 by 3 इट स्टार्ट विथ लैम्डा क्यूब माइनस s1 lambda square plus s2 into lambda minus determinant of a equals to 0. Okay, so learn this characteristic equation for 3 by 3 matrix. ठीक है, और यहाँ पर s1 डिनोट करता है, तो s1 is sum of diagonal elements. S1 क्या डिनोट करता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. सो इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? A11, A22, A33. इनकी हम क्या ले रहे? सम. दैट इज A11 प्लस A22 प्लस A33. सो दिस इज वैल्यू ऑफ S1. ओके, अब S2. नाउ S2 डिनोट सम ऑफ minus of diagonal elements. Okay, S2 क्या डिनोट कर रहा है? sum of minus of diagonal elements. Okay, तो S2 equals to, तो देखो अपना फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है? A11. ओके, और इस A11 का माइनर क्या आएगा? माइनर कैसे मिलता है? Minor of element is obtained by deleting row and column in which that element lie. अब A11 के माइनर के लिए हम क्या करेंगे? A11 कौन से रो में है? फर्स्ट रो में है, सो वी डिलीट फर्स्ट रो. A11 कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में, सो वी डिलीट फर्स्ट कॉलम. जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको हम एक डिटरमिनेंट में एनक्लोज करेंगे. हम ये क्या फाइंड कर रहे हैं? माइनर. ठीक है, so minor of A11 क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A22, A23, A32 एंड A33 प्लस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट क्या है अपना? A22. A22 के माइनर के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे. जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, क्या है रिमेनिंग एलिमेंट्स? A11, A13, A31 and A3. ओके, और थर्ड डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? A33. इसके माइनर के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे. ओके, सो आएंगे अपने एलिमेंट्स A11, A12, A21 एंड A2. ओके, सो S2 क्या डिनोट कर रहा है? सम ऑफ माइनर्स. किसके माइनर्स लेने हैं हमें? जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनके माइनर्स लेने हैं. ओके, और उनकी एडिशन को हम क्या डिनोट कर रहे हैं? S2. ओके, तो क्या है? वंस अगेन आई रिपीट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स. आपको ये इक्वेशन लर्न करना है. लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0. यहाँ पर S1 क्या डिनोट करता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. S2 डिनोट करता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट. ओके, तो रफली अगर मुझे एक मैट्रिक्स से S2 निकालना है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, इस मैट्रिक्स से मुझे सपोज S1 और S2 निकालना है, तो S1 क्या डिनोट करता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मींस 1 + 5 + 9 है ना. ये हो गया अपना S1. और S2 के लिए हम क्या करेंगे? 3 माइनर्स लेने हैं. कौन से माइनर्स लेने हैं? माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो इनके लिए देखिए मैं 3 डिटरमिनेंट यहाँ पर पिक करने वाली हूँ. ठीक है, so first determinant आएगा this one, that is upper
लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, कौन सा लेना है, अपर लेफ्ट कॉर्नर। दूसरा डिटरमिनेंट आपको लेना है, तो दूसरा डिटरमिनेंट आएगा दिस मैट्रिक्स, so this is second determinant, okay, कौन सा है, लोअर राइट कॉर्नर। देखिए मैंने कौन से डिटरमिनेंट्स पिक किए हैं, अपर लेफ्ट कॉर्नर दिस 4 एलिमेंट्स, ठीक है, बाद में लोअर राइट कॉर्नर दिस 4 एलिमेंट्स, और थर्ड माइनर कौन सा लेना है, जो 4 कॉर्नर्स वाले एलिमेंट्स है उनको एनक्लोज करना है, ठीक है। तो देखिए S2 मिलेगा हमें, S2 इज इक्वल्स टू कौन सा, ये वाला कॉर्नर, डिटरमिनेंट 1 2 4 5 प्लस सेकेंडली हमको लेना है ये वाला नीचे वाला कॉर्नर, दैट इज 5 6 8 9, और थर्डली हम कौन सी एलिमेंट्स ले रहे हैं, 4 कॉर्नर वाली एलिमेंट्स, दैट इज 1 3 7 9, ओके। सो इन दिस वे वी फाइंड वैल्यू ऑफ S2, और डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हम इजीली निकाल सकते हैं, आइदर मैन्युअली निकालो या फिर कैलसी से फाइंड करो, ओके। सो एंड फाइनली सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ S1 एंड S2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ A in this standard characteristic equation, okay। I hope आपके समझ में आया होगा। once again see these equations, recall these equations। so for 2 by 2 matrix characteristic equation is lambda square minus S1 lambda plus determinant equals to 0, और 3 by 3 के लिए lambda cube minus S1 lambda square plus S2 lambda minus determinant equals to 0, ओके। तो पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डेफिनेशन समझनी है, बाद में हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स एंड 3 by 3 मैट्रिक्स, वो आपको समझना है, ओके। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, मेन टॉपिक कैले-हैमिल्टन थ्योरम, उसको स्टार्ट करेंगे। नाउ see the statement of Cayley-Hamilton theorem। So statement is every squared matrix satisfy its own characteristic equation। क्या है Cayley-Hamilton theorem? Every square matrix satisfy its own characteristic equation, okay। So and what is meaning of square matrix? Square matrix means matrix having same number of row and same number of columns, okay। So every square matrix satisfy its own characteristic equation, और अभी मैंने बताया है कि how to find characteristic equation of 2 by 2 matrix and 3 by 3 matrix, okay। So here I take one example, for example just for your kind information। So let A be the square matrix, A be the square matrix, so of course it satisfies Cayley-Hamilton theorem। तो इस मैट्रिक्स A Cayley-Hamilton satisfy करेगा because it is squared matrix, okay। so let A be the squared matrix and let lambda cube minus 3 lambda square plus 5 lambda minus say 4 equals to 0। I denoted equation number 1। Suppose this matrix A is squared matrix, okay, and having characteristic equation say lambda cube minus 3 lambda square plus 5 lambda minus 4 equals to 0। तो Cayley-Hamilton theorem हमें क्या बताता है कि every square matrix satisfy its own characteristic equation। तो यहाँ पर हमने characteristic equation को इक्वेशन नंबर 1 डिनोट किया है। तो by Cayley-Hamilton theorem मैट्रिक्स A satisfy, मैट्रिक्स A क्या सेटिस्फाई करेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या डिनोट किया है, इक्वेशन नंबर 1। तो मैट्रिक्स A satisfy इक्वेशन 1 है ना, ओके। और अगर मैट्रिक्स A इक्वेशन 1 सेटिस्फाई करता है, इसका मीनिंग क्या है, मीन्स
वी रिप्लेस लैम्ब्डा बाय ए। ओके, सो देखिए अगर मैट्रिक्स ए ने इक्वेशन 1 सेटिस्फाई किया है तो इसका मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पर लैम्ब्डा को हम ए से रिप्लेस करेंगे, सो वी गेट ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 5a माइनस, हाँ अब देखिए यहाँ पर a क्या है, मैट्रिक्स है, सो ऑब्वियसली a क्यूब इज ऑल्सो मैट्रिक्स, a square is also matrix, a is also the matrix, so what about this minus 4, it is also matrix, but along with this 4 we take one term I, और यहाँ पर I क्या डिनोट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, so this is equals to 0. Okay, so in this way matrix A is satisfied characteristic equation. Okay, so we just replace lambda by A and only remember this term. So along with constant we take identity matrix I. Okay, so we denote it equation number 2. Just this is nothing but Cayley-Hamilton theorem. Okay, और कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछते हैं फाइंड ए इनवर्स यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम। इससे पहले हमने ए इनवर्स फाइंड किया हुआ था with the help of partitioning method, but if it is asked to find a inverse using Cayley-Hamilton theorem, then what we do? So first of all we find characteristic equation, then we apply Cayley-Hamilton theorem, and afterwards we multiply this equation by a inverse. Okay, so a inverse के लिए हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई फॉर ए इनवर्स, अगर पूछा है ए इनवर्स तभी प्री मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो फॉर ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय ए इनवर्स। ठीक है, सो अगर मैंने हर एक टर्म को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या होगा, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स होगा ए प्लस 5 इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स या तो फिर ए इनवर्स इंटू ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है ना। सो 5 ए इनवर्स इंटू ए मिलेगा 5i माइनस 4i इंटू ए इनवर्स या तो फिर ए इनवर्स इंटू आई, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ए इनवर्स। सो लास्ट टर्म आएगी माइनस 4 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0 इंटू ए इनवर्स आएगा 0। ओके, क्या किया हमने इनवर्स के लिए, जस्ट प्री मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 2 बाय ए इनवर्स। ओके, सो दैट वी गेट दिस इक्वेशन। फिर से हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस 4 ए इनवर्स को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। ओके, सो हियर वी गेट, सो देखो मैंने अगर 4 ए इनवर्स को शिफ्ट किया तो मुझे मिलेगा माइनस 4 ए इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस 4 ए इनवर्स equals to these terms remain as it is, that is a square minus 3a plus 5i. Okay, and hence a inverse is equals to, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर शिफ्ट किया तो 2 है, तो 1/4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5i है ना। और अगर आपके पास मैट्रिक्स a अवेलेबल है तो आप इजीली a इनवर्स फाइंड कर सकते हो, और आई तो हमें मालूम है क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स या तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं हम उसे, है ना। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ए एंड आई, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ए इनवर्स, दैट इज रिक्वायर्ड इनवर्स। ओके, सो इन दिस वे वी अप्लाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड इट्स इनवर्स। ओके, तो मोस्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन कंपल्सरी पूछा जाता है फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, तो कंपल्सरी टॉपिक है, कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, और सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, मैट्रिक्स का इजीएस्ट टॉपिक है। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जाता है वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड हेंस फाइंड इट्स इनवर्स। ठीक है, तो पहले कैले-हैमिल्टन अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड किया,
बाद में अगर मैट्रिक्स ए स्क्वायर्ड मैट्रिक्स है तो इट सेटिस्फाई इसका क्या है अपना कैले हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर्ड मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर ए स्क्वायर्ड मैट्रिक्स है तो क्या होगा, इट सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। तो दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बाद में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए लैम्बडा को हमने ए से रिप्लेस किया, है ना। और अगर आपको ए इनवर्स फाइंड करना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय ए इनवर्स, देन रीअरेंज द टर्म्स एंड फाइंड ए इनवर्स। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा है वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो हमने यहाँ पर कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई किया हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। अब यहाँ पर कैले हैमिल्टन अप्लाई करने के बाद देखिए इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। बट आपको अगर वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और उसमें हम ए क्यूब की वैल्यू पुटअप करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करेंगे, ए की वैल्यू और आई की वैल्यू पुटअप करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करने के बाद इफ वी गेट 0 नल मैट्रिक्स, देन अगर आपको नल मैट्रिक्स मिलता है, इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या मिलती है, नल मैट्रिक्स दैट इज 0 मिलता है, देन कैले हैमिल्टन थ्योरम गेट satisfied। Okay, so in this way we verify कैले हैमिल्टन थ्योरम। Now I take example of Cayley-Hamilton theorem. So question is verify Cayley-Hamilton theorem and hence find inverse of the matrix. So we have given this matrix, its order is 3 by 3. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, Cayley-Hamilton theorem वेरीफाई करना है। So once again recall statement of Cayley-Hamilton theorem. Every square matrix satisfy इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। तो कैले हैमिल्टन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। बट इज दिस अ स्क्वायर्ड मैट्रिक्स, यस, बिकॉज इट्स ऑर्डर इज 3 by 3, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। और इसका एक्सपेंशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, सो हियर वी राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज क्या होता है, 3 by 3 के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0, वेयर s1 डिनोट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 2 plus 2 plus 2 that is 6। S2 डिनोट करता है सम ऑफ माइनस, किसके माइनस लेते हैं हम, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स के माइनस लेने हैं। और उसके लिए मैंने बताया है आपको कौन से 3 डिटरमिनेंट्स लेने हैं हमें, अपर लेफ्ट कॉर्नर, सो S2 इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 minus 1 minus 1 2 प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट हम कौन सा लेने वाले हैं, दिस लोअर राइट कॉर्नर, दैट इज 2 minus 1 minus 1 2 प्लस तीसरे डिटरमिनेंट में हम क्या लेते हैं, 4 कॉर्नर्ड एलिमेंट्स, दैट इज 2 1 1 2। नाउ वी इवैल्यूएट दिस 3 डिटरमिनेंट्स, so 4 minus 1 that is 3 plus again 4 minus 1 3, 4 minus 1 again it is 3। so अपनी S2 की वैल्यू क्या मिल रही है, S2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 9, 3 plus 3 plus 3 that is 9, ठीक है। और S1 क्या मिला है अपना 6। अब नाउ वी टेक डिटरमिनेंट। सो यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू लेनी है हमें, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, हाँ डिटरमिनेंट के लिए आप कैल से भी प्रेफर कर सकते हैं या तो फिर मैन्युअली भी कर सकते हैं। बट अगर मैन्युअली किया तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा, है
ना. सो बेटर वी प्रिफर कैलसी. ओके, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4. अब क्या करना है, S1 S2 और डिटरमिनेंट की वैल्यू अपनी स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुटअप करनी है. तो अपना इक्वेशन आएगा, therefore कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्बडा क्यूब माइनस S1 की वैल्यू क्या मिली हमें 6, तो 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 की वैल्यू कितनी है 9, सो प्लस 9 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट क्या है 4, सो -4 इक्वल्स टू 0. वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 1. और ये हमें क्या मिला है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को एक बार फिर से चेक करना है. अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गलत हुआ है तो अगले सभी स्टेप्स आपकी गलत होंगे. ओके, तो बाद में क्या करना है, आफ्टर गेटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी अप्लाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम. ओके, therefore by कैले-हैमिल्टन थ्योरम, कैले-हैमिल्टन अप्लाई करना मतलब क्या, सिंपली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्बडा की जगह पर ए से रिप्लेस करना. बिकॉज व्हाट इज कैले-हैमिल्टन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो इसमें सिर्फ हम लैम्बडा को गिवन मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे, दैट इज ए से रिप्लेस करेंगे. सो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4 इंटू, ये सभी टर्म्स मैट्रिसेस के फॉर्म में है. सो ऑफ कोर्स लास्ट टर्म also is of the form matrix. Okay, so 4 into I equals to 0. We denote equation number 2. So after applying Cayley-Hamilton theorem, we get this equation. Okay, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेरीफाई Cayley-Hamilton theorem and hence find inverse of the matrix. यहाँ पर हमने Cayley-Hamilton अप्लाई किया है. अब वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, we consider left hand side of this equation and we check whether its value is 0 or not. अगर वैल्यू 0 मिलती है then Cayley-Hamilton theorem get satisfied or verified. Okay, so for verification we consider left hand side of equation 2. तो क्या है left hand side of this equation 2, it is a cube minus 6a square plus 9a minus 4i. ओके, अब फिर से आपको क्या करना है, कैल्सी से a क्यूब a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, so here with the help of calci we calculate value of a cube. So our a cube is 22 minus 21, then 21 minus 21, 22 minus 21, then 21 minus 21 and 22. So with the help of calci we find value of a cube. Okay, so this is our a cube minus 6 into a स्क्वायर है ना. अब कैल्सी पर हम क्या फाइंड करेंगे, a स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज 6 माइनस 5, देन माइनस 5, 6 माइनस 5, देन 5 माइनस 5, 6. दिस इज वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 9 इंटू a, दैट इज प्लस 9 इंटू value of a is 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2. So this is 9a minus 4 into I क्या डिनोट करता है, यूनिट मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1. और अगर आपने ये सभी टर्म्स को या तो फिर अगर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, so after simplification we get null matrix. Okay, so see 22 minus यहाँ पर आएगा 36, 22 minus 36 is minus 14, then minus 14 plus 18 आएगा 4 and this minus 4 becomes 0. So in this way
we check each element. Okay, so here each and every element becomes 0. Okay, and hence here left hand side becomes, so अपनी LHS मिलेगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0. That is the null matrix. Okay, and you may denote it by this 0. Okay, so see here we consider left hand side, that is this left hand side, और हमने इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करके देखी है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, नल मैट्रिक्स, या तो फिर हम 0 भी कह सकते हैं, है ना. एंड हेंस दिस LHS इज इक्वल्स टू RHS, right, and hence equation 2 get satisfied. Okay, and hence Cayley-Hamilton theorem is verified. Okay, therefore Cayley-Hamilton theorem is verified. Okay, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, वेरीफाई Cayley-Hamilton theorem and hence find its inverse. अब इनवर्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. सो फॉर A इनवर्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय A इनवर्स. प्री मल्टीप्लाई करो या तो फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करो, वन एंड द सेम थिंग. ओके, सो सी A क्यूब को मैंने A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिलेगा, A स्क्वायर. ओके, माइनस 6A स्क्वायर इंटू A इनवर्स आएगा 6A प्लस 9A इंटू A इनवर्स. A इंटू A इनवर्स क्या होता है, I, माइनस 4I इंटू A इनवर्स आएगा 4A इनवर्स इक्वल्स टू 0. अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ A इनवर्स को फाइंड करना है. सो वी शिफ्ट दिस minus 4A inverse towards another side, and hence here we get 4A inverse is equals to A square minus 6A plus 9I. या तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A inverse is equals to 1/4 times A square minus 6A plus 9I, right. That is A inverse is equals to 1/4 into, देखिए अब हम A स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करेंगे. ऑलरेडी हमने कैलसी पर A स्क्वायर फाइंड किया है ना. तो सेम वैल्यू अब यहाँ पर पुट करनी है. फिर से कैलकुलेशन नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी वैल्यू इज रिटन ओवर हियर, राइट. सो A स्क्वायर है 6 minus 5 minus 5 6 minus 5 minus 5 6. Okay, minus 6 into A, now matrix A, 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2 plus 9I, that is 9 into I क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना. Now after simplification we get required inverse. Okay, so A inverse is equals to 1/4 into, now see 6 minus 12, that is minus 6 minus 6 plus 9 कितना आएगा, minus 6 plus 9 plus 3. then next minus 5 minus minus plus 6 minus 5 plus 6 कितना आएगा, 11 plus 9, that is 20. इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, -5 plus 6, that is -5 plus 6 कितना आएगा, +1, and 1 plus 0 is 1. ओके, सिमिलरली अगर रिमेनिंग एलिमेंट्स भी हमने फाइंड किए, देन वी गेट 5
minus 6, that is minus 1, plus 0, that is minus 1. Okay, so the next element minus 5 plus 6, that is 1, plus 0, that is 1. Then 6 minus 12, 6 minus 12 is minus 6 plus 9 is 3. Then next minus 5 plus 6, that is 1, plus 0, that is 1. Okay. Then 5 minus 6 is minus 1. Then next element is minus 5 plus 6, that is 1. And last element is 6 minus 12, that is minus 6 plus 9 is 3. Okay, so in this way we find inverse of the matrix using Cayley-Hamilton theorem. Okay, so with this I stop my lecture. In next video we will see further examples of Cayley-Hamilton theorem. Okay, thank you.